I am a yoga instructor and yoga therapist from Singapore. It is a great pleasure and honor to be amongst such great dignitaries and speakers today. आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ. As you all know, 21st June is the International Day of Yoga, and we have started the celebrations already. YouthNews.online, in association with National Youth Foundation, Indian Yoga Association, and Parmarth Niketan Ashram have organized International Yoga E-Conclave, and today is the second day. We have some renowned and eminent speakers from all over the world to enlighten us. Yesterday was the first day of the conclave, and we had the privilege to listen to many spiritual gurus and yoga masters from all over the world sharing their wisdom and knowledge with us. It is my pleasure to extend a cheerful welcome to all of you for the second day of International Yoga E-Conclave 2021. I would like to thank the sponsors of the conclave, who are City Montessori School, Vishwa and Vyasa Canada, the Art of Living Foundation, Hum Purna Yoga Institute, Sarva Yoga International, Resonance the Yoga Studio, International Naturopathy Organization, SBPASS, World Yoga Federation, Yoga Alliance International, Sunmark Event Expert, Adhyatma Yoga Kendra, Soham Department of Yoga and Naturopathy, MJ College, Jalgaon, Anand Ashram Pondicherry, Dr. Nutan Ayurveda and Garbh Sanskar Academy, Manav Dharam Argentinian Hindu Parishad. Thank you all. The reach and spread of yoga today spans across continents. There are communities of yoga practitioners in almost every country in the world today. In order to benefit fully from yoga, to understand yoga in its entirety, we must reflect on who is a yogi. There is a beautiful shlok in Bhagavad Gita where Lord Krishna says, Yasmano dvijate loko, lokano dvijate chayaha, harshamarsh bhayo dvegair, muktoya sachme priyaha. By whom the world is not disturbed, and he who is not disturbed by the world, who is free from joy, impatience, fear, and distress. He is also dear to me. As you all know, we are going through extraordinary times with the pandemic still quite prevalent. As the world battles the COVID-19 pandemic on a war footing, India's traditional system of yoga has been established as a means to boost immunity, improve overall health and well-being. On 20th March 2020, Director General of the WHO also suggested that people could do yoga to maintain their physical and mental health. This will not help you only in the long term, it will also help you to fight COVID-19 if you get it, he suggested. So much. We would like to welcome you all. This event is organized by YouthNews.online in association with Parmarth Niketan Ashram and Indian Yoga Association. यहाँ आए हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ. This event is supported by City Montessori School, Vishwa and Vyasa Canada, the Art of Living Foundation, Hum Purna Yoga Institute, Sarva Yoga International, Resonance the Yoga Studio, International Naturopathy Organization, World Yoga Federation, Yoga Alliance, Sunmark Event Expert, Adhyatma Yoga Kendra, Soham Department of Yoga and Naturopathy, MJ College Jalgaon, Ananda Ashram Pondicherry, Dr. Nutan Ayurveda and Garbh Sanskar Academy, Manav Dharma Argentinian Hindu Parishad. इसी के साथ मैं यहाँ आए हुए सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ. हमारे बीच में अब से कुछ ही देर बाद आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
डॉक्टर स्वामी सत्यप्रकाश जी होंगे, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। We will be great to have special guest महात्मा कृष्णानंद जी, the president मानव धर्म अर्जेंटीनियन हिंदू परिषद, उनका भी स्वागत है। We would like to welcome Nandini Tripathi, Director of Project Implementation and Communication at Global Interfaith Wash Alliance. We would like to welcome Yogi Chintamani, educationist and peace activist from Nepal. We would like to welcome Acharya Vasudevanand ji. We would like to welcome Tone Well, Shishir Srivastav ji, Antim Kumar Jain ji, Eric joining it all the way. Then we have the list is endless. Acharya Vipin Joshi ji Maharaj, Swami Suryananda Saraswati. Then we would like to have the Dr. Nutan's speech. We would like to welcome her on board. Then Yogacharya Dhakka Ram ji, Dr. Madan Manav ji, Anant Biradar ji. We would like to welcome you all on behalf of Indian Yoga Association, National Youth Foundation, Parmarth Niketan and YouthNews.online. With this, I would like to request Neetu ji to can you proceed this event further? Thank you. अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर मदन मानव, सीएमओ ऑफ हरियाणा योग नेचुरोपैथी हॉस्पिटल भिवानी एंड फाउंडर ब्लिसफुल फ्रेंड फैमिली, डॉक्टर मदन मानव। सभी दिव्य आत्माओं का मेरा आनंद भरा नमस्कार। अभी आकाराम जी हमें हंसा रहे थे और यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हंसिए और हंसाइए, संसार सुखी बनाइए। एक बार मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सभी हिमांशु जी के लिए, राजस्मृति जी के लिए और पूरी टीम के लिए एक बार हम क्लैपिंग करेंगे। रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आपने हम सबको जोड़ा और योग यही हमें सिखाता है। मेरा, क्योंकि हम इस वेबिनार के लगभग अंतिम चरण में हैं और समय भी बहुत कम निश्चित हुआ है, तो मैं बहुत ही कम समय में अपनी बात को रखना चाहूंगा। मेरा विषय है आनंदमय जीवन, ब्लिसफुल लाइफ टू ब्लिसफुल वर्ल्ड। हम स्वयं कैसे आनंदित रह सकते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम कैसे अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को और पूरी मानवता को आनंदित बना सकते हैं, ये हमारा योग का उद्देश्य है और ये होना चाहिए। सभी योगी आत्माओं ने अपने अपने अनुभव से, अपने अपने शब्दों में अपने विषय को रखा, जो मैं पिछले 27 साल के मेरे अनुभव में समझ पाया हूं। और आम आदमी किस तरह से अपने आप को आनंदित रख सकता है, बस मैं चंद शब्दों में उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। अष्टांग योग को यदि मैं समराइज करूं तो मैं कहना चाहूंगा कि यम और नियम से अपने शरीर को, मन को पवित्र करके, आसनों से अपने शरीर को सुदृढ़ करके, प्राणायाम से मन को एकाग्र करके, प्रत्याहार से उसमें निरंतर एकाग्रता बनाए रखते हुए, धारणा को आगे बढ़ाते हुए, ध्यानस्थ होकर के आनंदित जीवन को समाधि में बनाना, ये हमारे योग का उद्देश्य होना चाहिए। इसमें सभी 8 अंग समाहित हो गए हैं और इसके माध्यम से हम अपनी व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरणीय सभी तरह की समस्याओं को हम बहुत सहजता से खत्म कर सकते हैं। अभी आपने कहा कि मेरा एक कॉन्सेप्ट है ब्लिसफुल फ्रेंड फैमिली। समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है ये। आज न्यूक्लियर फैमिली हो गई है और उस न्यूक्लियर फैमिली की वजह से हम लोगों के जीवन में से सुख और आनंद लगभग गायब सा हो गया है। तो हमारे सम विचार के जो आसपास, हमारे ऊपर या नीचे, बाएं या दाएं, आगे या पीछे जो लोग रहते हैं, उन सबको हम अपना एक परिवार मान करके, उनको एक ज्वाइंट फैमिली का रूप दे करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, तो हम इस अपने जीवन को भी और इस संसार को भी हम आनंदित बना सकते हैं। मित्रों, हम सब अपने अपने जीवन को
जी रहे हैं और कोई किसी तरह से कोई किस तरह से अपने जीवन को पूरा करके आगे जा रहा है, जैसे कि अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा। लेकिन क्या हमारे मनुष्य जीवन का इतनी ही सार्थकता है? मेरे साथ हमारे इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनंत ब्रादर जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और कितनी विभूतियां हिमांशु जी ने जोड़ी हैं, कोई शब्द नहीं हो सकते हिमांशु जी का धन्यवाद करने के लिए, लेकिन अभी विषय तक मैं सीमित रहूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर के एक ऐसे संसार का निर्माण करें जहां केवल आनंद ही आनंद हो, कोई गम भी नहीं हो, कोई समस्याएं भी नहीं हो। आज का जीवन हम जो जी रहे हैं उसमें केवल हमारा चिंतन माया तक सीमित हो गया है, जबकि हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने माया को दूसरा स्थान दिया है। आज हम उस वास्तविकता को भूल करके हमने माया को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी है, जबकि होना चाहिए था काया को प्राथमिकता देना। तो मैं जो समझ पाया हूं वो कहना चाहूंगा कि हम स्वस्थ, समृद्ध, सुखी, शक्तिशाली, सुंदर, संतुष्ट, शांत और आनंदित कैसे हो सकते हैं, ये हमारा चिंतन होना चाहिए। और इस चिंतन को अष्टांग योग पूरी तरह से कर सकता है, बशर्ते कि हम उस रास्ते को उस तरह से चलाएं। तो योग में प्राकृतिक जीवन को अपना करके हम अभी सभी तरह की अपनी समस्याओं को हम खत्म कर सकते हैं। तो आइए योग की इस समरी को, इस पूर्णता को हम आत्मसात करें और अपने दैनिक जीवन को हम आगे बढ़ाएं, हमारे आसपास भी हम उसी भाव को फैलाएं। तो फिर देखिएगा एक से एक जो कड़ी है वो जुड़ते हुए चली जाएगी और ये संसार पूरा आनंदमय हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% के 100% लोग आनंदित हो जाएंगे, लेकिन यदि हम 100 में से 56% को भी, 54% को भी कर पाए तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। और निश्चित रूप से ऐसा संभव है, बशर्ते कि हम सब लोग मिलकर के उस ओर आगे बढ़ें। तो आज हमें स्वीकार करना चाहिए कि जितना भी हमारे ऋषियों ने हमें जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल बताया था, योग में प्राकृतिक जीवन बताया था, उसको हम आत्मसात करें। सो कॉल्ड मॉडर्न लाइफस्टाइल को जब से हमने फॉलो करना शुरू कर दिया है, तब से ही हमारे जीवन से ये सब स्वास्थ्य, सुख, शांति और आनंद सब गायब हो गए हैं। अब हम भौतिकता की चरम सीमा को पहुंच करके उन सारे साधनों को इकट्ठा करके और फिर भी हम कहीं महसूस नहीं कर पा रहे कि हमारे जीवन में आनंद है। हमें क्षणिक लगता है कि हमारे जीवन में सुख बड़ा है, लेकिन सच्चाई में क्या हो रहा है वो सब हम जानते हैं। तो हमें उस सत्य को समझना चाहिए। और मैं सभी, क्योंकि समय की सीमा को मुझे ध्यान में रखना है, मैं सभी दिव्य आत्माओं को नमन करते हुए और हिमांशु जी को ये एक बार निवेदन फिर से करना चाहूंगा कि इस तरह का आयोजन आप हर वर्ष करें, ताकि हम आनंदमय संसार के निर्माण में सहयोगी हो सकें और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकें। सभी पुनः दिव्य आत्माओं को मेरा बहुत बहुत आनंद भरा नमस्कार, धन्यवाद।